بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ماہنور قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ہیڈ کوچ کی ذمہ داریوں پر توجہ دینے کے لیے عہدہ چھوڑا۔ مجھ پر کوئی دباؤ تھا، نہ ہی وزیر اعظم سے ملاقات وجہ بنی۔ ہار جیت کا ذمہ دار سلیکٹر ہوتا ہے، کوچ نہیں۔ مصباح الحق۔ بابر اعظم کی ون ڈے اور T20 کے لیے کپتانی میں 1 سال کی توسیع۔ ملک کی سیاسی محاذ گرم، گجرانوالہ میں اپوزیشن کے جلسے کی تیاریاں۔ نون لیگ رہنماؤں نے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پلان بنا لیے۔ پیپلز پارٹی نے گجرانوالہ میں پارٹی کارکنوں کی گرفتاری کا الزام لگا دیا۔ بغیر اجازت کارنر میٹنگز اور عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی، انتظامیہ۔ پی ڈی ایم کا جلسہ اور اسمبلی اجلاس رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ جسٹس مسعود عابد نے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی۔ جلسے کرانا اور SOPs پر عمل کرانے کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، عدالت۔ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ مقدمے ہمارے لیے تمغے ہیں، جلسے رکیں گے نہ ہی قافلے۔ گجرانوالہ میں بھرپور جلسہ ہوگا۔ حکمران 2.5 سال سے اپوزیشن پر وار کر رہے ہیں، نفیسہ شاہ۔ جلسوں سے ڈر کے کورونا مقدمات بنائے جا رہے ہیں، نفیسہ شاہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیب کراچی میں پیشی۔ مراد علی شاہ سے مختلف کیسز سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ روشن پاکستان پروگرام، گندم بحران، ٹریکٹر سبسڈی کیس، سندھ بینک سے متعلق پوچھ گچھ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی DG نیب کراچی نجف مرزا سے بھی ملاقات۔ پاکستان کی معیشت کورونا سے بری طرح متاثر ہوئی۔ IMF۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو صرف 1% ہو سکتی ہے۔ IMF نے پاکستان کا اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا۔ بے روزگاری کی شرح 5.10% ہو سکتی ہے۔ IMF۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، حکومت خاموش تماشائی۔ آٹا، دالیں، سبزی، گوشت، دودھ، انڈے، سب کچھ مہنگا۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ کراچی میں آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 800 روپے تک جا پہنچا۔ مونگ اور ماش کی دال 240 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر 200، ہری مرچ 240 اور دہی 180 روپے کلو ہو گیا۔ پاکستان آرمی نے بین الاقوامی ڈرل مقابلہ پیس اسٹکنگ جیت لیا۔ مقابلہ رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں منعقد کیا گیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول نے پاک آرمی کی نمائندگی کی۔ ISPR۔ لاہور کی فضا میں اسموک کی انٹری، PDMA نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ PDMA کے مطابق اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی۔ شہر کی فضا نارنجی اور حد نگاہ کم، سانس لینا بھی محال۔ اسموک کی وجہ ملک کے شمالی حصے میں فصلوں کو جلانا ہے۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ سندھ کے جزائر پر وفاق کی تعمیرات کے خلاف سندھ بھر میں ترقی پسند پارٹی کی جانب سے شٹر بند ہڑتال۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کے ساحلی پٹی اور سمندری جزائر پر وفاق کی جانب سے تعمیرات کے خلاف سندھ بھر میں قوم پرست جماعت سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے ہڑتال کی کال پر سندھ بھر سمیت ڈگری میں بھی تمام کاروباری مراکز بند ہیں۔ شاہی بازار، صرافہ بازار، لائق مارکیٹ، اسٹیشن روڈ، ٹنڈو باغو، میروا ٹنڈو غلام علی روڈ سمیت تمام مرکزی کاروبار بند رہا۔
डिग्री में एसटीपी की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन रहा। एसटीपी के जिलाई रहनुमा मीर यूनुस टालपुर ने कामयाब हड़ताल पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वफाक ने आइन से इनकराफ करके आर्डिनेंस का अजरा करके सिंध के जजायर और साहिल पर कब्जा करने की कोशिश की है। जजायर सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। वफाक की गैर आइनी इकदाम की मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब तहसील डिग्री में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे शहर में शटर बंद हड़ताल के बाद गश्त पर मामूर हैं। ज़ैनुल आबदीन, हक न्यूज़, डिग्री। घोटकी में पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की जानिब से अपने मुतालबात के हक पर ओपीडीज का बायकॉट करके एहतजाज किया गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर घोटकी में पैरा मेडिकल और डॉक्टर्स की जानिब से अस्पताल के एमएस डॉक्टर अरबाब मलिक, डॉक्टर जफर हुसैन संगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन बलोच, उजैर अहमद ख्वाजा, सैयद इमदाद अली बुखारी, रमजान गडानी, हैबत हुसैन मलिक और बावल घोटो की क़यादत में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए ओपीडीज का बायकाट किया। इस मौके पर एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि सिंध हुकूमत और महकमा फाइनेंस ने कोरोना से लड़ने वाले महकमा हेल्थ के मुलाजमीन को अलाउंसेस से महरूम रखा है, जो कि इनसे ज्यादती है। इनका कहना था कि मुल्क में ताल कोरोना की लहर चल रही है और अमला दिन रात अपने फराइज अंजाम दे रहा है। महकमा हेल्थ के मुलाजमीन फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, इसके बावजूद अपने जायज हकूक से महरूम है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत महकमा सेहत के मुलाजमीन से नाइंसाफियां कर रही है, जिसके बायस मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि रिंस अलाउंस बहाल करके सेहत के मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर अलाउंस न दिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। साहिवाल चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अपने अमले के साथ शहर और गिरदोनवाह में सफाई के इंतजामात का जायजा। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार की इस रिपोर्ट में। सब चमकेगा, जो काम किसी से हो न सका तू कर देगा, तू कर देगा। साफ रखो गली मोहल्ले है ये लिफ्सिमान, तेरे मेरे हाथों से होगा साफ पाकिस्तान, होगा साफ पाकिस्तान। हर हाथ कहे दिन रात कहे होगा साफ पाकिस्तान, हर शहर कहे देहात कहे होगा साफ पाकिस्तान, हर दिल बोले हर जान कहे होगा साफ पाकिस्तान, अब सारा पाकिस्तान कहे होगा साफ पाकिस्तान। साहिवाल चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फरमाइश अली चौधरी अपने अमले के साथ शहर और गिरदोनवाह में, जिनमें हाई स्ट्रीट, गोल चक्कर, फरीदिया रोड, माल मंडी, कॉलेज चौक, फरीद टाउन रोड, बारवाला अड्डा, जीटी रोड, पाक पतन चौक से जोगी चौक, दीपालपुर बाजार के दौरे के दौरान शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वर्कर्स और अमले को चेक करते हुए सख्ती से हिदायत देते हुए शहर को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाद उन्होंने स्लाटर हाउस का भी दौरा किया और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक अपने साले के प्राइवेट बिजनेस को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर राना वाजिद अरशद ने अपने अजीज निजी वेटनरी स्टोर के मालिक असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर डॉक्टर जमशेद इकबाल की प्राइवेट बिजनेस को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने लगा। तकरीबन सुबह 11 बजे इतवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर राना वाद अरशद ने डॉक्टर राना जमशेद इकबाल के साथ मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सफियान दिलावर की जानिब से सीज शुदा सरकारी कमरे में नकब लगाकर 2 नंबर मुतनाज़ा अदवाइयात चोरी करा के गायब करा दी। यरगमाल बनाए जाने वाले मुलाजमीन के बयानात और मौके पर मौजूद शहादात यकीनन इंतज़ामिया और महकमा लाइफ स्टॉक के लिए लम्हा फिक्रा बन चुके हैं। इस किस्म की सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाते हुए अवामी समाजी हलकों ने इस बड़ी जैल साजी व कानून के साथ खेलने वाले अनासर के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल।
साहिवाल अदबी तंजीम के ज़ेर एहतमाम मोहतरमा ज़ैनब आफ्ताब लाशारी के शेरी मजमुआ की तकरीब का इनेकाद अड्डा बूटीपाल पर किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल अदबी तंजीम संघ के ज़ेर एहतमाम मोहतरमा ज़ैनब आफ्ताब लाशारी के शेरी मजमुआ पागल मनवा की तकरीब की रूनुमाई अड्डी बूटीपाल पर मुनक्कद की गई, जिसमें शुरा की कसीर तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने अपने अपने कलाम को पढ़ा। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन मोहम्मद तारक और सदर मोहम्मद फ़ारूक अज़हर थे। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। हसन अब्दाल टीपू सुल्तान शहीद चौक के करीब सुजुकी पिकअप में अचानक आग भड़क उठी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। हसन अब्दाल टीपू सुल्तान शहीद चौक में गाड़ी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जिस पे जीटी रोड पर चलती सुजुकी पिकअप में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। ताहम गाड़ी में सवार 2 साला बच्चा, एक बुजुर्ग मौला बख्श और ड्राइवर मोहम्मद हफीज़ मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। ताहम आतिशज़दगी के बायस गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। वाक़या की इतला पाकर मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की गाड़ी फौरी तौर पर मौका पर पहुँच गई, जिसने मुख्तसर वक्त में आग पर काबू पा लिया। इस मौका पर DSP मोटरवे पुलिस बीट थी आदिल शहजाद और मुकामी पुलिस भी मौका पर मौजूद थी, जिन्होंने गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद हफीज़ से आतिशज़दगी से मुताल्लिक आगाही हासिल की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।